کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے۔ سید شاہ احمد اللہ حسینی نے ہائیڈرا ورسس لینڈ گرابرز کے تعلق سے کچھ تفصیلی باتیں بتائی ہے، آپ ذرا غور سے اور ضرور سنیے۔ حیدرآباد میں جو ندی نالوں پر قبضے کر کے عوام کی جان کو بارش کے پانی سے خطرے میں ڈالا جا رہا، پینے کے پانی کے لیکس قبضے کر کے عوام کو گرما میں جو پیاسا مارا جا رہا، ان سب کے دھندوں اور محلوں پر ہائیڈرا کا بلڈوزر چل رہا ہے۔ زیادہ تر یہ معاملوں میں پولیٹیشنز اور ہائی پروفائل VVIPs انوالو ہے، جو شہر کے بڑے کاروباریوں سے مل کر لینڈ گریبنگ کر رہے ہیں۔ کوئی وقت کے ہر CM کو اپنا فرینڈ بنا کر تو کوئی CM کو ریلیف فنڈ دے کر کام پہچان رہے ہیں۔ لیکس پر قبضے کرنے کے لیے پولیٹیشنز شہر کے بڑے کاروباریوں کو کام دے رہے ہیں۔ مٹی ڈال کر لیک بند کرنے کے بعد اس زمین کو بیچنے اور پلاٹنگ کرنے کا کام پولیٹیشنز اپنے قریبی زمین کاروباریوں کو دے رہے ہیں۔ ایسے ہی انڈائریکٹ وے میں اقتدار پر موجود پولیٹیشنز اپنی ہرس و ذاتی مفاد کے لیے عوام کی جان سے کھیلتے ہوئے ہزاروں کروڑ کے مالک بن رہے ہیں۔ حال ہی میں حیدرآباد MP جناب اسد الدین اویسی صاحب کے محل کے قریب شیورام پلی علاقے میں بم رکن الدین دولہ کے تالاب پر کیے گئے ناجائز قبضوں پر ہائیڈرا نے بلڈوزر چلا دیا۔ بلڈوزرز کی کارروائی کے وقت AIMIM کے MLAs اور کارپوریٹرز کو کام رکوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ تب سے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں میں فکر تھی کہ AIMIM حیدرآباد MP عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب اب اس بارے میں کیا کہیں گے۔ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں ایک لیڈی جرنلسٹ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسد الدین اویسی صاحب سے وہ سوال کر دیا جس کا جواب سننے حیدرآباد کے غیور مسلمان بڑے بے چین تھے، لیکن اسد الدین اویسی صاحب نے ہمیشہ کی طرح سوال کے جواب کو ہوا میں گھما دیا۔ سوال کچھ کیا گیا تو جواب کچھ دیا گیا، آم کے بارے میں پوچھا گیا تو جام کے فائدے بتا کر اصل سوال سے بچ کے نکل جانا، یہ بہت پرانا فنڈا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریونت ریڈی جی بھی بلڈوزر کا ہی استعمال کر رہے ہیں، اس میں آپ کے MIM کے ایک نیتا جو ہے ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کی بھی زمین یا پھر انہوں نے بھی وہاں پر اویدھ طریقے سے ہم نے ہمارے کارپوریٹرز نے میئر صاحبہ سے کمشنر کے پاس جا کر وہ جو ہائیڈرا بنایا گیا ہے اس کو ہم نے بتایا ہے کہ وہ اس کا کوئی لیجسلیٹو لیگل بیکنگ نہیں ہے، اس کو وہ پبلک ڈومین میں ہے۔ اور پھر ہمارے MLA کوثر صاحب جا کر چیف سیکریٹری کو بھی بولے ہیں، یہ بات ہم بولے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ GHMC کا جو آفس ہے، ابھی GHMC کا آفس ہے نا، تو ہم لوگ جو ہے ہمارے اسکول میں جب ہم لوگ بس میں جاتے تھے، حیدرآباد پبلک اسکول کو بس میں جاتے تھے، میرے کو اچھی طرح یاد ہے ہماری جو بس ہوتی تھی واپسی میں ایسا آتی تھی، یا پھر کبھی کبھی میں پبلک اسکول کو جاتا تھا بس پکڑ کے، ایک بس نمبر 7 ہوتی تھی، ابھی بھی ہوں گی، ڈبل ڈکر میں بیٹھ جاتا تھا میں، اوپر بیٹھنے کا بڑا شوق تھا میرے کو۔ ہاں، وہ لبرٹی سے جاتی تھی، لبرٹی سے ٹینک بن جاتی تھی، وہاں پر جہاں پر GHMC کا آفس ہے وہاں پر ایک واٹر فال تھا، میں ہی دیکھا سو ہوں۔ سنا آپ نے، جرنلسٹ نے سیدھا سوال کیا کہ تالاب کے ناجائز قبضوں میں AIMIM کے نیتاؤں کا نام آیا ہے، تو اسد الدین اویسی صاحب نے جواب ہوا میں پھرا کر کہہ دیا کہ ہم نے کمشنر اور چیف سیکریٹری کو ہائیڈرا کے خلاف بولا ہے۔ جرنلسٹ کا سوال ہے کہ AIMIM کے نیتا انوالو ہے، اسد صاحب نے کہہ دیا میں ڈبل بس میں اوپر بیٹھ کے اسکول جاتا تھا۔ جرنلسٹ کا سوال ہے کہ AIMIM کے نیتا ناجائز قبضوں میں انوالو ہے، اسد صاحب نے کہہ دیا میرے بچپن میں لبرٹی کے آگے GHMC آفس کے پاس ایک واٹر فال تھا۔ اب جرنلسٹ کی مجبوری یہ رہتی کہ کراس کوسچننگ نہیں کر سکتے،
आम पूछे तो जाम बोले, तो अब जर्नलिस्ट को आवाम को आम के नाम पे जाम छाप के बताना पड़ता। लेकिन यहाँ पर बचपन में डबल बस के ऊपर बैठ के जो नजारे किए गए, उसके आगे हकीकत की एक बहुत बड़ी दुनिया है। बुम रुकनुद्दीन दौला के तालाब पर मिट्टी डाल के बंद करने और वो जमीन अल्लाह की कब्जा अब्दुल्ला का करने चिमन लाल का इन्वॉल्वमेंट है, जिससे असद साहब जुड़े हुए हैं। तालाब पर मिट्टी डाल के उसे जमीन की शक्ल देने के बाद प्लॉटिंग करने के काम में जो किंग्स का नाम आया है, वो भी असद साहब से जुड़े हुए हैं। वहां 45 के करीब कब्जों पर हाइड्रा ने बुलडोजर चलाया, जिसमें AIMIM बहादुरपुरा MLA मुबीन साहब की 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी और AIMIM MLC मिर्जार अहमद बेग की 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जिसे हाइड्रा ने डिमोलिश कर दिया। ताजुब की बात यह है कि यहाँ अवाम AIMIM की क़यादत में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के सहारे 60 साल से डेवलपमेंट को तरस रही है। 63% मुसलमान गुर्बत का शिकार हो गए। जर जेवर जमीन जायदाद बैंकों में रखकर सूद में मुब्तला हो गए मुसलमान। ज्यादातर मुसलमान शराब के आदी हो गए। तकरीबन मुसलमानों के घरों में शराब आम हो गई। मामूली पैसों के वास्ते एक दूसरे के मर्डर्स किए जा रहे हैं। मनुसत और गुर्बत का ये हाल कर दिया गया कि 1 किलो चावल अगर कोई फ्री में बांट रहे हैं तो पेट की भूख मिटाने बुरखा पोश खवातीन दिन भर लाइन में खड़े रह रहे हैं। और इधर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की बुनियाद पर चंद महीने पहले MLA और MLC बने और चंद महीनों में ही नाजायज जमीनों के कब्जों पर जायदादों के मालिक बन गए। तकारीर सुन के थालियां बजाने वाले, जिंदाबाद कहने वाले, नारे तकबीर के नारे लगाने वाले 60 साल से सिर्फ चंद पैसों की गुलामी में रह गए और नारे तकबीर की बुनियाद पर चंद महीने पहले इलेक्ट हुए MLC और MLAs के तालाबों, जमीनों और जायदादों पर कब्जे हो गए। यहां मोहल्लों में 20-25 साल से अवाम एक सही रोड को तरस रही तो एक रोड तक नहीं बना रही, लेकिन सिर्फ चंद महीनों में MLA और MLC के 5-5 फ्लोर के बिल्डिंगां तैयार हो जा रही। अवाम के कॉलोनीज और रोडों से कचरा नहीं उठ रहा, लेकिन देखते देखते बड़े बड़े तालाबों पे मिट्टी डाल के साफ कर दे रही। और हमारे हर दिल अजीज MP साहब हाइड्रा के बुलडोजर्स बंद करने के लिए GHMC कमिश्नर और मेयर पर जोर डाल रही, जबकि हाइड्रा अवाम के जिंदगियां बचाने का काम कर रही। हाइड्रा यानी हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन, यानी मौसम के आफात से अवाम के जिंदगियां बचाने का काम। अवाम के पीने के पानी के तालाबों, अवाम के सहूलतों के असासों और उसकी देखभाल का काम, उसे चोरों, लुटेरों, लैंड ग्रैबर से बचाने का काम और नाम है हाइड्रा। अब MP साहब देखभाल करने वालों को ही हटाने की कोशिश में है, प्रोटेक्शन करने वाली टीम को ही बर्खास्त करने की कोशिश में है। सीधी सीधी बात है, यानी अवाम के जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है। तालाब कब्जे होके लीडर्स के महल बन गए और अवाम को पीने का पानी नहीं मिला, प्यासे रह गए तो कोई परवाह नहीं। नदी नाले कब्जे होके मेन होल से पानी जाना अगर ब्लॉक हो गया, अवाम के घरों और कारोबारों में बारिश का पानी घुस गया तो लीडर्स के लिए कोई परवाह की बात नहीं। बारिश का पानी जाने के लिए तालाब और नाले अगर नहीं है तो थोड़ी सी ही बारिश में सड़कें नदी और नालों में तब्दील हो जाती हैं और कई लोग उसमें बह के मर जाते। लेकिन लीडर्स को उसकी कोई परवाह नहीं है, बस कब्जे चलते रहना, पॉलिटिशियंस महलों में रहना, करोड़ों रुपये के गरम सेके होना और अवाम नदी नालों में बह के मरते रहना। इसलिए शायद कोशिश की जा रही है कि हाइड्रा बंद होना। ताजुब होता है, एक तरफ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, मुसलमान, शरीयत, दीन इस्लाम का नाम लेकर वोट लिया जाता है, तो दूसरी तरफ मसाजिद शहीद होने पर हमारे MP साहब का कहना था कि मस्जिद गिराइशों वाले कॉन्ट्रैक्टर पर कंप्लेन कर लो। और इधर देखिए, नाजायज कब्जे रोक कर अवाम की जान बचाने का काम हो रहा है तो MP साहब हाइड्रा बंद करवाने की फिराक में है। अब आइए जरा ये भी सुनिए। नेकलेस रोड FTL पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड FTL पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको। तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? FTL है, CCMB का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है
ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के ज़माने में जब उन्होंने हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ नहीं, वो स्टोन्स लगाते थे कि ये FTL है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको। आपको लग रहा है कि FTL में जितनी भी हैं उनको थोड़ा जाना चाहिए? आपने देखिए, आपके सवाल का जवाब इतना ही दे रहा हूं मैं। हिमायत सागर के पास के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को और निकलेस रोड को क्यों तोड़ेंगे साहब? क्या हिमायत सागर पे और निकलेस रोड पे कब्जा करके कोई प्लॉटिंग करके अपना जाती महल बना लिए? क्यों तोड़ेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, अवाम के काम का है। निकलेस रोड है, उसको कोई जमीन अल्लाह की कब्जा अब्दुल्ला का बोल के कब्जा तो नहीं किए, वो अवाम की सहूलत के वास्ते है, अवाम को खुली हवा और अच्छा माहौल देने के वास्ते बनाया गया है निकलेस रोड। तो उसे क्यों तोड़ेंगे? आप उसे तुड़वाने की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, और एक बात, FTL में और एक बात है, गोलकुंडा में गोल्फ कोर्स है, FTL में है। अब कितने लोग गोल्फ खेलते हैं, मैं तो जिंदगी में मेरे को मालूम ही नहीं गोल्फ क्या होता। FTL में है, आप देख लो, वो जाके देखो आप, गोल्फ कोर्स FTL में है। अच्छा, कितने IAS IPS ऑफिसर जाके खेलते, टिक 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 टिक, वहां पे 3-3 घंटे खेलते IAS IPS अफसर वहां पे। वही गोल्फ कोर्स में फोटो निकाल के डालता हूं मैं, कौन से IAS IPS और खेलते गोल्फ कोर्स वहां पे 4-4 घंटे खेलते गोल्फ का। खेलने गए तो 3 घंटे खेलना पड़ता, एक होल क्या क्या रहता, वो लंबा होता। भाई क्या हो रहा है फिर ये? बेशक गोलकुंडा में गोल्फ कोर्स है, अच्छी बात है, फॉरेनर्स वहां पर आकर हैदराबाद की तारीफ करके जाते हैं। ऐसे मुकामात हैदराबाद की शान है। कोई इस गोल्फ कोर्स को जमीन अल्लाह की कब्जा अब्दुल्ला का बोल के कब्जा तो नहीं कर लिए, वहां पर कोई प्लॉटिंग तो नहीं कर लिए, नाजायज कब्जे तो नहीं कर लिए, कोई उस गोल्फ कोर्स पर अपने बिल्डिंग्स बना के उस पे टिक 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 करते हुए तो नहीं बैठे हुए है। अवाम की सहूलत के वास्ते बनाया गया है वो, हैदराबाद की शान बढ़ाने के लिए बनाया गया है वो। नहीं तो फिर क्या आपकी क़यादत वाले इलाकों में और गलियों में आएंगे फॉरेनर्स? चार मीनार बस स्टैंड को जो तोड़कर कचरे की कुंडी बनाया गया, उसको देखकर हैदराबाद की तारीफ करेंगे फॉरेनर्स? आपकी 60 साला क़यादत की गलियों में गयूर बच्चों के वैसा गली में गिल्ली डंडा खेलने आएंगे वहां पर फॉरेनर्स? मासूम गयूर मुसलमान जिस तरह कचरे और नालों में अपने जिंदगियां खत्म कर ले रही, उस तरह वहां आके रहेंगे फॉरेनर्स? हमारे हर दिल अजीज MP असदुद्दीन अवैसी साहब के बयान से यह साफ जाहिर हो रहा कि अवाम की जिंदगियों से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। तालाबों पे कब्जे, प्लॉटिंग और MLA MLCs के बिल्डिंग अगर नहीं तोड़े, अनजान मार दिए, रहने दिए, तो हमारे MP साहब के लिए सब सही है। गोल्फ क्लब में 3-4 घंटे टिक 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 खेले तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अवाम के जिंदगियों की हिफाजत के लिए अगर अपने MLA MLCs के नाजायज कब्जों पे बुलडोजर चला, तो MP साहब को गोल्फ क्लब की टिक 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 से ऑब्जेक्शन है, हाइड्रा के काम से ऑब्जेक्शन है। वाह साहब वाह, कायद और रहबर हो तो आप जैसा हो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।